So have you all visited our website bantastore.com? Yeah, Yes, sir. I have. Yeah, I have So also have you visited. found anything? Yeah, I did a whole over the sections, and you all sell academic as well as non-academic books. Yeah. The main motto of our company is to sell old books and new books. The old books will be collected from the students who have passed that year, or you can say passed that class, and we will sell that books to the student who just need that. See, when you pass a class, you need a book which will help you to you need a book. Okay, just for example, you need a book, and you go to the market, you just roam around the market, and you see that what the book you want that doesn't in the that is not in the market. So what you will do, you will like purchase a new book which will cost almost 500, 600. So there is an option that you can purchase same book at a lower rate, but it will be refurbished. I think you all are knowing what is refurbished. Means the old book, means the old things that is used by someone else, and now they doesn't need that, and you are going to use that. So this is our total concept. Now you will tell me that okay, it is like normal. So what is interesting in the website? Okay, so starting from the journey, means starting from 2021, I think so, December 2021, we have started our website, and we are successfully running that. uh, till now we have sold almost, I don't have the record, 1 minute, I will show you. Till now we have sold more than 1000 plus books till now. So it is very good progress, I think so. So in this orientation program we will discuss more about what you have to do in the like company. So you have to do market research. Now try to listen this very carefully. You have to do market research. And which type of market research? You just have to go to the vendors or the student and ask them what they need, or which book they sell very most. You have to ask to the vendors that उनके पास कौन सा ऐसी बुक्स है जो कि सबसे ज्यादा बिकती है. आर यू ऑल कंफर्टेबल इन हिंदी? Yeah, Yes. yeah. ओके. Yes, sir. Yes, sir. सो आप लोग को वेंडर मीन्स दुकानदार, आपको उनके पास जानी है और जाके उनसे पूछना है कि हाँ आपके पास कौन सा बुक सबसे ज्यादा बिकता है. और आपको एक मार्केट रिसर्च करना है कि हाँ लाइक ये बुक सबसे ज्यादा उनके पास बिकता है, ये बुक सबसे ज्यादा इनके पास बिकता है. और मार्केट में सबसे ज्यादा किस बुक का डिमांड है, स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, स्टूडेंट सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट का बुक को प्रेफर करते हैं. सी, मार्केट रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मार्केट रिसर्च नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट फेल कर जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का. ये चीज मैंने खुद देखा है और मैंने ये सब चीज लाइक एक्सपीरियंस भी करा है. अगर आप अच्छे से मार्केट रिसर्च करते हो तो आपको पता रहता है कि हाँ किस मार्केट में मुझे जाना है, मेरा प्रोडक्ट किस मार्केट में चलेगा, तो आप अपना प्रोडक्ट को उसी मार्केट में लेकर जाते हो. बेसिकली दिस इज द मेन मोटो ऑफ डूइंग मार्केट रिसर्च. तो यू ऑल हैव टू डू मार्केट रिसर्च. सी, आपको लग रहा हो कि मार्केट रिसर्च क्या ही ये सब से होगा, बट ट्रस्ट मी गाइस, आप अभी लाइक आप किसी कंपनी में लाइक जॉब नहीं कर रहे हो, आई नो, बट इन फ्यूचर जब भी आप किसी कंपनी में जाओगे, वहां पे आपको प्रेजेंटेशन जब देना पड़ेगा, तो प्रेजेंटेशन आप ऐसे ही नहीं दे दोगे, या फिर कोई आपको लाइक टॉपिक नहीं देगा कि हाँ इस टॉपिक पे आपको प्रेजेंटेशन बनाना है. नहीं, आपको खुद से जाना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, तभी आप प्रेजेंटेशन दे पाओगे. मैंने भी दिया है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है सब. सो आपको उन वेंडर्स के पास जाना है, उनसे लाइक मार्केट रिसर्च करना है कि हाँ कौन सा बुक सबसे ज्यादा चलता है, एंड जो स्टूडेंट्स है उनकी क्या प्रॉब्लम्स है बुक्स को रिलेटेड. आपको हर चीज हर एक्सपेक्ट पे आपको देखना है. सो आप लोग के पास कुछ सजेशन है मार्केट रिसर्च को लेकर? हेलो. सर किस एज ग्रुप या फिर किस कौन सा कोर्स के लिए सर ये करना होगा? या सी, ज्यादातर हम लोग क्लास 1 से लेकर हम लोग पीएचडी तक हम लोग फोकस करते हैं. तो अगर पॉसिबल हो तो आप लोग अभी सिर्फ स्कूल लाइफ को कवर कीजिए, बिकॉज
school life is more impacted in this coronavirus time. I think you all are knowing that. इस कोरोना में सबसे ज्यादा अगर किसी को इम्पैक्ट पड़ा है तो वो स्कूल के बच्चे, क्योंकि सी कॉलेज के बच्चों का क्या है कि उनके पास नोट्स रहता है, अगर नोट्स भी नहीं है तो भी कहीं से लाइक मांग लेते हैं, उनके पास लाइब्रेरीज है, वो लोग चले जाते हैं और उनको पता है कि कहाँ से बुक मिलेगा और वो घर से बाहर निकल सकते हैं, उनके पास पूरा फ्रीडम होता है। बट स्कूल के बच्चे जैसे क्लास 3 4 के बच्चे, आप उनको क्या बोलोगे कि हाँ बाहर जाओ, आप जाके बुक को खरीद के लाओ? ये ऐसा नहीं होता, इसलिए सबसे ज्यादा स्कूल के बच्चे इम्पैक्ट हुए हैं। तो आपको स्कूल के बच्चों पे सबसे ज्यादा टारगेट करना है, क्लास आई थिंक क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक। और बट सर स्कूल वाले तो खुद बुक प्रोवाइड करते हैं हर क्लास के बच्चे को, और उनका ये भी रहता है बड़े बड़े स्कूल का कि आपको बुक मेरे ही स्कूल, मेरे ही ये से लेना है, मेरे ही स्टोर से लेना है। ठीक है, तो जैसे कि आपने कभी कोटा, दिल्ली या फिर इन जगहों पे कभी देखा है स्टूडेंट्स को स्टडी करते हुए? यस सर। तो वो लाइक किस टाइप से स्टडी करते हैं? वो लोग को स्कूल से सिर्फ एनसीईआरटी ही मिलता है, अगर वो भी नहीं तो उनको स्कूल से कोई बुक्स नहीं मिलता है। क्योंकि मेरे स्कूल से मुझे कोई बुक्स नहीं मिले थे 11 12 में स्पेशली। मुझे खुद से बाहर जाके एनसीईआरटी के बुक्स, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा के बुक्स मुझे खुद से परचेज करने पड़े थे। उसके बाद अगर आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे तो आप लोग ने अच्छा एक्सपीरियंस किया होगा कि 11 12 के बच्चों को स्कूल से बुक्स नहीं मिलती। हेलो। यस सर 8 क्लास के बाद से एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल और एसपीपीडी सब, ये सब बुक आने लगती है सर। हाँ बट सर 8 क्लास के नीचे सर वो ज्यादातर स्कूल वाले ही बुक प्रोवाइड करते ठीक है, तो आप 8 क्लास से लेकर आप 12 तक आप रिसर्च कीजिए, क्योंकि आप रिसर्च करोगे तो ही आपको पता चले कि हाँ जरूरत क्या है मार्केट में। ओके। हैं। ओके सर। और एक चीज और, लाइक आप अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ये जो दो टर्म्स है, इनको भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। लाइक आप कैसे करोगे रिसर्च, अब मैं वो बताता हूँ। अभी आप लोग सब कॉलेज में ही होंगे शायद, एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो आप अपने फर्स्ट ईयर के जो भी अपने बैचमेट्स होंगे, या फिर सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर, आप उनसे जाके बात करके, हाँ आपको कभी बुक का जरूरत पड़ा है या फिर आपने कहाँ से बुक खरीदा था, आपको कितनी पड़ी थी वो बुक की कीमत। अपने दुकानदार जो हैं, जो लोकल दुकानदार होंगे, आपको उनसे कर बात कीजिए कि हाँ क्या कॉलेज के बच्चे भी आते हैं यहाँ से बुक खरीदने के लिए, अगर आते हैं तो कौन सा बुक्स खरीदते हैं और सबसे ज्यादा कौन सा बुक्स लेते हैं। लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज अगर आप देखोगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे ज्यादा बुक्स जो होते हैं, लाइक वो लोग प्रेफर करते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। आई नो थर्ड ईयर में लोग बुक्स उतना नहीं प्रेफर करते हैं, और बट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो करते हैं। आपको उनके पास जाना पड़ेगा, जाके उनसे पूछना पड़ेगा कि हाँ आप कौन सा बुक्स को प्रेफर करते हो। आप एक फ्लो चार्ट बनाओगे कि हाँ स्कूल के बच्चे ये बुक प्रेफर करते हैं और कॉलेज के बच्चे ये। फिर आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे, आपको वहां पे भी दिखना पड़ेगा। लाइक एमबीए हो गया, शायद आपने सबने सुना होगा एमबीए क्या होता है। Hmm. तो Yes. वहां पे भी आपको जाके रिसर्च करना पड़ेगा कि हाँ जो स्टूडेंट्स है, जैसे अगर आप एमबीए में एक चीज सुने होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग में दिक्कत होता है, अगर आपने कभी देखा होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है ना? हेलो। यस Yes, सर। sir. Yes. यस Yes, sir. Yes. तो वो अकाउंटिंग के लिए लाइक किसी टीचर के पास जाते हैं या फिर लाइक खुद से ही जो यूट्यूब वगैरह उनसे रिसर्च करते हैं, बट उनके पास अगर आप देखोगे तो वो ऑनलाइन में लाइक वो बुक्स को डाउनलोड कर लेते हैं, बट वो फिर बाद में कभी उस बुक को स्टडी नहीं कर पाते, क्योंकि आप भी जान रहे हो जब आप फोन खोलते हो बुक्स को पढ़ने के लिए या फिर स्टडी करने के लिए, तो साथ ही साथ आप यूट्यूब भी देखने लग जाते हो, फेसबुक भी और इंस्टाग्राम भी। ये एक डिस्ट्रैक्शन है या नहीं? आपको लगता है ये प्रॉब्लम है? Yes, sir. ये problem है. बस। तो वो स्टूडेंट्स जो सीरियस होते हैं वो बुक्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो तवज्जो देते हैं ज्यादा बुक्स को। तो आपको उनके पास जाना है और रिसर्च करना है कि हाँ क्या आपको कौन सा बुक्स की ज्यादा जरूरत है। ठीक है। ठीक है sir. आप लोग में से कोई कुछ सजेशन देना चाहेगा?
हेलो, हेलो। यस सर। आप लोग में से कोई कुछ सजेशन देना चाहता है इस पे? नो सर, आई विल ट्राई सर, कैसे करना है क्या करना है। ठीक है, तो हम लोग संडे को एक मीटिंग रखेंगे। मतलब मैं आपको आज पूरा फ्राइडे का टाइम देता हूँ, सैटरडे का भी टाइम देता हूँ, और संडे को शायद आप लोग सब फ्री होंगे क्योंकि उस दिन किसी का कोई कॉलेज नहीं है। तो संडे को सुबह में, हेलो, हाँ सर। संडे को सुबह में हम लोग मीटिंग रखेंगे जहां पर आपको ये मार्केट रिसर्च जो भी आपने करा है उस पे आप लोग सब मेरे को बताएंगे कि हाँ, क्या मार्केट रिसर्च करा आपने, क्या एनालाइज किया आपने, क्या देखा, सब कुछ आप मेरे को एज अ प्रेजेंटेशन मेरे को आप बताओगे। ठीक है? ओके सर। ओके सर। आप लोग सब एग्री करते हो? Yes. यस सर। देखिए, इससे फायदा आपको ही होगा जब आप फ्यूचर में किसी कंपनी में जब जाओगे। तो देखिए, अभी तो मैं आपको बहुत छोटा सा प्रेजेंटेशन बोल रहा हूँ। जब आप किसी बड़े कंपनी में जब जाओगे ना, तो आपको सिर्फ काम दे दिया जाएगा कि हाँ आपको रिसर्च करना है, बता दिया जाएगा कि स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च करना है, इस टॉपिक पे करना है, और सारा काम आपको खुद से करना पड़ेगा, वो भी एक दिन या 2-3 घंटे के अंदर। तो वहां पे आपको वर्कलोड हैंडल करना आना चाहिए, इसलिए मैं आपको 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, आप 2 दिन में कर लीजिए। ठीक है सर। अगर कुछ भी हेल्प चाहिए होगा मार्केट रिसर्च से, आप मेरे को ग्रुप में बोलिएगा या फिर आप पर्सनली मेरे को बोलिएगा, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा। ठीक है? और ये मत सोचिए कि हाँ रात में 9 बज गया है तो पता नहीं अभी बिजी होंगे कि क्या होंगे। नहीं, आप उस टाइम भी मेरे को आप लाइक कॉल कर सकते हो या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, हम फ्री रहेंगे। ठीक है? ठीक है। ठीक है सर। तो संडे को हम लोग कौन सा टाइम चूज करें जिसमें आप लोग सब फ्री रहोगे? Sir, दोपहर ठीक है, तो हम लोग दोपहर। सुबह को I have some classes. ओके ओके ओके, ठीक है। तो हम लाइक हम डिसाइड करते हैं आज कि संडे को कौन सा क्लास रखें, मतलब किस टाइम में रखें, और आप लोग उस टाइम मेरे को सब प्रेजेंटेशन देना। ठीक है? ठीक है सर। और हाँ, आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रेजेंटेशन कैसे देना है? लाइक आपने कभी दिया है प्रेजेंटेशन कभी इससे पहले? हाँ दिया ना. गुड। हाँ मैंने भी लिया है। तो जिन्होंने नहीं दिया है, ये उनके लिए पहली बार होगा, और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पहली बात तो ये कि कोई आपको यहाँ पे जानता नहीं है, ना किसी ने आपका चेहरा देखा है। तो अगर आप कुछ भी गलती भी करोगे तो आपको कोई उतना शर्म आना चाहिए या फिर ये सब फील नहीं आना चाहिए आपको, क्योंकि आप ट्राई तो कर रहे हो ना कम से कम। कुछ लोग ट्राई भी नहीं करते। यस। या तो हम लोग संडे को मिलते हैं एक अच्छा सा मार्केट रिसर्च का प्रेजेंटेशन के साथ। ठीक है? यस सर। और उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको आगे बता दूंगा। और ठीक ठीक और है सर। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है अबाउट द कंपनी और एनीथिंग अबाउट द कंपनी, अबाउट द वर्क एक्सेट्रा, कुछ भी आप पूछ सकते हो। हेलो, सर ये कंपनी ऑल ओवर इंडिया में एक्टिव है या फिर कोई स्पेसिफिक प्लेस पे है सर? अभी हम लोग पूरा पैन इंडिया में अभी हम लोग नहीं गए हैं, हम लोग ऑनलाइन के थ्रू पूरे पैन इंडिया में जाएंगे। हमारे स्टोर्स हैं बट अभी पूरे पैन इंडिया में नहीं है, हमारे स्टोर्स पूरे पैन इंडिया में नहीं है। बट जैसा कि सर मैंने, मुझे मेरा ओके। यस सर, हाँ बोलिए। सर, सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ अगर बोलिए। अगर अगर कोई अपना ओल्ड बुक सेल करना चाहता है तो वो आप लोगों को कैसे सेल करेगा? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, लाइक कोई भी ओल्ड बुक जैसे मेरे को सेल करना चाहता है तो वेबसाइट पे मैं अभी आज ही एक एड्रेस दूंगा। उसमें हमारी बात चल रही है एक आप कह सकते हो लाइक एक अच्छा अच्छा। ऑर्गेनाइजेशन से, जिनका एड्रेस अच्छा मैं अच्छा। अपने वेबसाइट पे डालूंगा। लोग हम्म। जिनको भी अपना बुक सेल करना होगा वो उस एड्रेस पे अपना बुक को सेंड कर देंगे वाया कुरियर और कुछ भी। उनको कुरियर अच्छा अच्छा। करने का रुपए, बुक्स का जो भी पैसा वो चार्ज करेंगे वो सब उनको मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। और अगर कुछ और लोग, सर जो हाँ,
हाँ सर बोलिए। उसी टाइम मिलेगा या फिर जब बुक सेल हो जाएगा तब मिलेगा? जस्ट उसी टाइम बुक सेल होने का वेट नहीं किया जाएगा। जैसे ही वो बुक भेज देंगे, बुक आ गया हमारे पास, उनको तुरंत रुपए मिल जाएगा। अच्छा। और सर बुक का वैल्यूएशन वो खुद जो जो पर्सन होगा जो सेल करेगा वो करेगा या कंपनी करेगी? जो कंपनी होगी वो बुक का करेगी। जो अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। अगर अगर जरूरत पड़ा तो जो सेल कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। और कोई क्वेश्चन? सर बुक्स का जो वैल्यूएशन है वो किस बेसिस पे होगा? क्योंकि ऐसे जो आपका जैसे अब आप क्या बोलेंगे, आप इधर लोकल में ऐसे बेचते हैं, जो रद्दी वाला आता है बेसिकली लोग उसी को दे देते हैं जब काम नहीं आता है। तो ज्यादातर लोग मैंने ऐसे किसी और को देते नहीं है कि यूज करने। ज्यादातर लोग पेपर वाला जो होता है ना हाँ उसको दे हाँ, दिया जाता है। वो क्या करता है, वो किलो के हिसाब से आपको रुपया देता है। तो देखिए। इसमें आपका मैंने आप हाँ हाँ, बोलिए। इसमें आप कैसे करोगे? मैंने वैल्यूएशन आपके पास आएगा, उसके बाद आप उसको कैसे ये करोगे? अब अगला देखिए। मैं बेच रहा हूँ, मैं तो उसमें हो हम्म, सकता है जो बुक में एमआरपी है उससे कुछ कम करके बोल दूं कि मुझे इतने रुपए चाहिए इस बुक का। देखिए, जो भी बुक हमारे पास आएंगी और वो उस बुक का जो भी कॉस्ट होगा, क्योंकि आप भी जान रहे हो कि बुक को रखने का भी कॉस्ट आता है। बुक्स को लाइक हम डिपार्चर करेंगे, मीन्स क्या उसको बोलते हैं, लाइक आप कैसे बोल सकते हो उसको, अगर हम किसी कस्टमर शिप तक। कर। हाँ, शिपिंग को कॉस्ट जो आता है वो भी हमें ही देखना है, और जो जिसने हमें बुक्स बेचा है उसकी जो कॉस्ट आएगी और बुक को रखने का कॉस्ट, ये तीनों कॉस्ट हमें देखना पड़ता है। फिर हमारे यहाँ हम्म। जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका कॉस्ट, इस सारे कॉस्ट को मिलाकर हम लोग बुक का कॉस्ट रख देंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ बुक्स का जो प्रॉफिट भी हम लोग रखेंगे, तो नहीं, बुक्स पे हम लोग कोई प्रॉफिट नहीं रख रहे हैं। तो ये क्योंकि जो मैंने आपने जो एनजीओ का आपने बीच में ये किया था, मुझे वो समझ में नहीं आया कि आप पुराने बुक्स ले लोगे और हम्म, अपने वेबसाइट पर आप उसे लिस्ट करोगे, फिर जिसको लेना है वो लेगा ना? हाँ ले सकते हैं, हाँ। अच्छा। नहीं तो आपने फिर वो एनजीओ का एक बीच में नो नो ये नो नो, किया था, नो नो रेफर नो, किया था। एनजीओ नहीं, एनजीओ नहीं। लाइक अगर आपको लग रहा हो कि हम लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसा कर रहे थे, लाइक कोई एनजीओ वगैरह, नहीं, एनजीओ नहीं 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 है। वो नहीं। See, हम अपने स्कूल डेज में, जैसा मैं बता रहा हूँ, मैं अपने स्कूल डेज में ये बहुत प्रॉब्लम फेस किया था। क्योंकि जब मैं क्लास 11 12 में था, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास बुक्स तो उतना अवेलेबल ही नहीं थी। मतलब अगर बुक्स अगर होती तो शायद मेरे पास अच्छा क्या कहते हैं, हम अच्छा कॉलेज में होते हैं, लाइक आज आईआईटीज या एनआईटीज वगैरह में होते हैं। मेरे पास उस टाइम बुक्स ही अवेलेबल नहीं थी। और जब मैं अपने दुकानदार के पास जब मैं जाता था तो उनके पास भी बुक्स रहती नहीं थी। और जब किसी से मांगता भी था तो बुक्स की कंडीशन ही ऐसी थी कि उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता था। बट जब 11th पास आउट हुए तो पता चला कि वो आर एस अग्रवाल की बुक किसी और के पास थी, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया था, इसलिए मेरे को ये एक आइडिया आया था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, उनको भी कभी ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। उनसे बुक पे एक भी रुपए का प्रॉफिट हम चार्ज नहीं करेंगे। इस बात का। सर हाँ इस चक्कर में कंपनी कैसे प्रॉफिट करती है? because you have to हाँ, make a living बिल्कुल। out of it. तो जो तो हमारे जो स्टोर है अगर ना, हमारी जो स्टोर है, हम लोग वहां से अर्न करते हैं। तो सर स्टोर भी तो सेम ही चीज करता है बट नो, ऑफलाइन से जो नहीं, स्टोर हमारे यहाँ पे जो स्टोर है वो सेम चीज नहीं कर रही है। लाइक जो जनरली अदर सिटीज में जो स्टोर्स होते हैं, वो भी वैसे ही करते हैं जैसे हम लोग रन कर रहे हैं। लाइक वो आपसे 20 या 30% पे बुक्स को खरीदते हैं और उसको 50% पे बेच देते हैं। तो हम लोग अपने स्टोर में भी वही चीज कर रहे हैं, बट हम लोग ऑनलाइन में फ्री में रखे हैं। सो एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल साइड? नो सर। ओके, तो आप लोग में से कितनों के पास रेज्यूमे है? है सर, रीजन है। सी, जब इंटर्नशिप ओवर हो जाएगा तो मैं आप सबकी रेज्यूमे जो आपने मुझे अपलोड करा है
मैं उसी टाइप से एक रेज्यूमे आपको एक बना के दे दूंगा जिसमें आपकी सारी इंटर्नशिप की डिटेल्स रहेगी और आपने जो भी अपना डिटेल्स फिल करा है वो सारी डिटेल्स उसमें रहेंगी। मीन्स आपको एक नया हेलो वसंत, तो मैं आपको खुद से एक रेज्यूमे बना के आपको दे दूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो रखना, अदरवाइज आप उसमें से कुछ चेंजेस कर सकते हो। ओके, जब इंटर्नशिप खत्म होगी फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको रेज्यूमे बना के दे दूंगा। ओके, सर एक बार फिर से बोलेंगे सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं। तो वसंत, जब आप लोग सबका इंटर्नशिप जब खत्म हो जाएगा तो आपको सर्टिफिकेट के साथ साथ एलओआर के साथ साथ आपको एक रेज्यूमे भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे खुद से बना के, जो कि आप लोग किसी भी इंडस्ट्री या फिर कंपनीज में आप लोग शो कर सकते हो। ओके, ओके सर। आप लोग चाहो इन फ्यूचर तो उसमें बाद में आप लोग अपना चेंजेस कर सकते हो, मेरे को उसमें दिक्कत नहीं है। ओके, ओके सर। ओके सर। ठीक है। सो एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल साइड? सर मैंने रेज्यूमे अपलोड नहीं किया था, मैंने बनाया नहीं है। ओके, कोई बात नहीं आदित्य, आप मेरे को अपने डिटेल्स शेयर कर देना जब ओके इंटर्नशिप खत्म होने के बाद आप मेरे को सारे डिटेल्स दे देना, मैं आपकी रेज्यूमे बना दूंगा उस टाइम। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। और आप इस बात से गारंटी रखो कि हमारी एक्सपीरियंस लगभग अच्छे कॉलेजेस फिर अच्छे कंपनीज के साथ है, तो मैं जो भी आपको रेज्यूमे बनाऊंगा वो एक ऐसा रेज्यूमे होगा जो कि आप किसी भी कॉलेज या फिर आप किसी भी कंपनीज में शो कर पाओगे वो रेज्यूमे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक ठीक है। है सर। तो हम लोग संडे को मिलते हैं, आप लोग मार्केटिंग रिसर्च पे पूरा लेकर आओ, हम लोग उस पर बात करते हैं। ठीक है, ओके सर। आप लोग सबको उस दिन प्रेजेंटेशन देनी है, कम से कम 5 मिनट ही सही, बट आप लोग देना वहाँ पे प्रेजेंटेशन। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, फिर थैंक यू ऑल गाइस फॉर ज्वाइनिंग द मीट। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। You all can leave.